सो कंटिन्यूइंग विद आवर केस स्टडी, आज हम 2022 का केस नंबर 9 सॉल्व करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 का केस 9 है। एंड दो बातें हैं। एक ये कि आप केस स्टडी सॉल्व करने में केस को बहुत अच्छे से ग्रास्प करें, क्या केस कह रहा है उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच में प्रिसाइजली, मतलब बहुत करीब से रियलिटी में आप उस चीज़ को ग्रास्प करें। और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। आप यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उसको देखें। बहुत से लोग केस स्टडी में सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, बट इससे आपका ये स्किल डेवलप नहीं होगा कि केस किस तरफ ले जा रहा है, कहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान देना है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। सो दैट्स वन। सेकंड कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का यूज़ करना है, जो कि मैं हर बार बता रहा हूँ। और उसमें यह है कि आपको लॉ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है। कई चीज़ें आपको विद ड्यू टाइम समझ में आ जाएंगी। एंड आई गिव एक्सप्लेनेशन अभी कि केसेस कितने टाइप के हैं, कितनी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, और एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का वीडियो पेंडिंग है, तो मैं जल्दी उसको प्रोवाइड करूंगा। बट टिल देन चलो देखते हैं हमारा ये केस क्या है। तो केस कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड माइनिंग इन अरावली हिल टू स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो हमारा इकोनॉमी वर्सेस इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे इन्होंने बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। However, stone mining was still prevalent in border district of affected state with connivance of certain corrupt forest official। तो सीधा सीधा ऑफिशियल इन्वॉल्व है एंड पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, इनकी वजह से स्टोन माइनिंग चल रही है। ओके। Young and dynamic SP, superintendent of police, who was recently posted in the affected district, promised to himself to stop this menace. Okay. In one of his surprise checks with his team, he found loaded trucks with stone trying to escape the mining area. Okay. So with his team, ये important होता है कि आप अकेले हो, टीम में हो, ये चीज़ें मैटर करती हैं। He tried to stop the truck, but the truck driver overran the police officer, killing him on the spot, and thereafter managed to flee. Police filed FIR, but no breakthrough was achieved. So this is a serious case over here. Driver overran and killed an officer. In this case for almost 16 महीने तक कुछ नहीं हुआ। अशोक, who was the investigative journalist working with leading TV channel Suo Moto, started investigating the case. Within 1 month, Ashok got breakthrough by interacting with local people, stone mining mafia, and government officials. He prepared his investigative story and presented to CMD of TV channel. Okay. He exposed in his investigative report the complete nexus of stone mafia working with the blessing of corrupt police, civil officials, and politicians. So this is a broad nexus which is given over here. Politicians who involved in the mafia was no one else but the local MLA, who was considered to be very close to the chief minister. Now this kind of relevance are not to be taken seriously. ठीक है, होगा। यू शुड नेवर टेक द, ये जो केसेस देते हैं ऑलवेज भी कि हाँ एमएलए है, एमएलए की तरह ट्रीट करना है। आफ्टर गोइंग थ्रू इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, द सीएमडी एडवाइज अशोक टू ड्रॉप द आइडिया ऑफ मेकिंग द स्टोरी पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। He informed that local MLA was not only relative of the owner of the TV channel but also had unofficially 20% share in the channel. The CMD further informed Ashok that his further promotion and hike in the pay will be taken care in addition, the soft loan of 10 lakh which he has taken from the channel for his son's chronic disease will be suitably adjusted if he hands over the investigative report to him. तो CMD का इन्वॉल्वमेंट भी लग रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ आप हो क्या, आपकी पोजीशन क्या है? आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो। कंडीशन इन्होंने ये बना रखा है कि यू आर ऑलवेज इन नीड, so this will always be there. It's not a big surprise. You will always be portrayed in need some way or another. So this is there. इनका भी लाइक some duty होती है भाई, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भी है। तो आप क्या कर सकते हो गिवन सिचुएशन? आपके पास स्टोरी है तो आप लोकल पे जा सकते हो, नेशनल पे जा सकते हो, अपनी आईडी हाइड कर सकते हो, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। बट स्टोरी को पब्लिश करना और एटलीस्ट ऑनेस्ट ऑफिशियल्स के पास लेके जाना बिकॉज बहुत ज़रूरी है। ये तो है कि हमारे करना क्या है, ये तो तय है। हाउ वी डू इट इज़ द क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अशोक टू कोप अप विद द सिचुएशन? क्रिटिकली इवेल्युएट एग्जामिन ऑप्शंस आइडेंटिफाइड बाय अशोक,
ठीक है, ये दोनों काइंड ऑफ हारमोनी में। व्हाट आर द एथिकल डिलेमा? डिलेमा आपके पास यहाँ पे 4 से 5 बड़े आराम से बन गए हैं। फेस बाय अशोक पूछा है, ठीक है, तो अशोक स्पेसिफिक देंगे, बट अगर केस में पूछता तो लाइक 5-6 डिलेमा थे, आप 4-5 लिखते हैं, बट अशोक में तो कम हो जाएंगे। विच ऑफ द ऑप्शंस डू यू थिंक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अशोक टू अडॉप्ट एंड वाई? In the above scenario, what type of training would you suggest for police officers posted to such district where stone mining illegal activities are rampant? तो ये ट्रेनिंग बहुत पूछने लग गए हैं, लाइक इस साल इन्होंने ट्रेनिंग पे फोकस किया है थोड़ा सा। वाई? नाउ यू कैन सी, बिकॉज वेरी ऑफन यू आर गोइंग एज लाइक इन एसपी और आईएएस या डिस्ट्रिक्ट एसडीएम बन के जाते हो, ऐसी चीज़ें होती हैं, डीएम बाद में बनते हो, तो यू कैन नॉट डील विद ऑल द सिचुएशन जस्ट लाइक अलोन। यू नीड, जो आपके अंडर में लोग हैं उनको आप थोड़ा सा, आपको सेंसिटिव, अवेयर एंड ट्रेन करना होगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन आए हैं, और हो सकता है आगे 23 में भी ये अपीयर करें, बिकॉज दिस आर लाइक प्रैक्टिकल, लाइक आई टेल यू ओवर एंड ओवर। मैं पहले भी बोला हूँ कि केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ध्यान में रखना है, और इन्होंने खुद ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए इस तरह के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो चलो देखते हैं हमारा लाइक क्या अप्रोच है। तो अप्रोच तो हमें मालूम है कि क्या करना है, वी जस्ट हैव टू सी, जो यहाँ पे सेकेंड है इवेल्युएशन, कि हमारे पास जो ऑप्शन है उनको एग्जामिन करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब उसके प्रॉस कॉन्स इवेल्युएट करने हैं, एंड देन हमें ऑप्शन ढूंढना है जिससे कि हमारे बेसिकली जो डिमेरिट्स हैं कौन से, उनको मिनिमाइज करते हुए हम किस वे में अपना जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द रिपोर्ट ऑन पब्लिक, ऑन एयर, है ना। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में लीस्ट डिमेरिट्स के साथ और हाईएस्ट मेरिट्स के साथ मिलेगी, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। बाकी ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, है ना। ये इसमें अगेन अप्रोप्रिएट में सिंपल से ये कि इसमें हम बेसिकली लिखेंगे किसके ये मेरिट है और ये डेमेरिट है, इनको हम ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, दिस इज द वे, लाइक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारे आंसर इन्होंने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन, द गिवन सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स अबाउट illegitimate, illegal mining and a strong nexus of politician, public official, mafia, which goes against the process of law and ecosystem. इकोसिस्टम के अगेंस्ट थोड़ी ना जा रहा है, विच इज हार्मिंग द इकोसिस्टम, जो नेक्सस से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है दैट इज हार्मिंग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन बैनिंग माइनिंग एक्टिविटीज ऑन एनुअल हेल्ड स्टेट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप इसमें इसमें लाइक कोर्ट को भी एक और ऑप्शन खुल जाता है। वाई? बिकॉज इफ यू हैव दिस रिपोर्ट एंड यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट इन केस लाइक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मानहानि हो रही है, अगर ये कंटिन्यू कर रहा है, एंड इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट, तो ये भी एक ऑप्शन आई थिंक की है। बट हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड हम क्या अप्रोच ले सकते हैं। तो हमारा सिंपल स्टेक होल्डर कौन से केस में एसपी, इनके लिए हमें जस्टिस चाहिए, अशोक जर्नलिस्ट हैं, स्टेट, इन्वायरमेंट, माफिया, ठीक है, तो डिक्री या ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हो, उनका ऑर्डर की मानहानि तो हो रही है ना। ओके, अवेलेबल ऑप्शन विल पब्लिश द स्टोरी, इन्वेस्टिगेशन स्टोरी इन पब्लिक थ्रू डिजिटल मीडिया, जो सिंपल ऑप्शन है कि वो तो सिंपल चीज़ है कि विड्रॉ, पहले इसे कर लो कि हम विड्रॉ कर लेंगे, लाइक छोटे से लाइक लीस्ट से मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाया करो। विल ड्रॉप आइडिया ऑफ मेकिंग इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग ऑन CMD, will drop the idea of making investigation story on CMD advice, सीधे यार ड्रॉप द आइडिया कर दो, इतना बड़ा हेडिंग देने की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन, विल सबमिट हिज इन्वेस्टिगेशन टू पब्लिक टू टेक फर्दर। अच्छा, पुलिस आप खुद ही यार पढ़ रहे हो कि इन्वॉल्व है, तो आप या तो बात करो कि अलग इंस्टीट्यूशंस को आप दे सकते हो, CVC में भेज सकते हो, है ना, या फिर जैसे मैंने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो विद दिस रिपोर्ट कि माय लॉर्ड योर ऑर्डर आर बीइंग वायलेटेड एंड इन दैट परसूट पुलिस ऑफिसर हैज बीन, तो आप इसके लिए कुछ करें। सो दे आर द हाईएस्ट अथॉरिटी। एक केस यहाँ पे भी बनता है कि यू कैन रीच आउट टू अदर एजेंसीज एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि केस सॉलिड है यहाँ पे, सीरियस है। So it's better to have multiple approach, because ये it's like sure certain way to get yourself killed.
अगर आप छोटे मोटे पुलिस जगह पे जा रहे हो, व्हेन यू सी दैट एन एसपी हैज बीन किल्ड, so it's a suicide. So be smart enough to read these kind of situations. Critical evaluation. तो यहाँ पे आपको ना ये लिखना था कि हम मल्टीपल जगह पे स्टोरी लॉन्च करेंगे क्योंकि केस सेंसिटिव है, देयर कैन बी थ्रेट टू योर लाइफ। एंड अगर आप लाइट में आते हो, आप अच्छा काम करते हो, तो इट विल टेक केयर ऑफ योर पर्सनल जो इश्यूज दिए रखे हैं। एनी जर्नलिस्ट हु डज अ गुड जॉब, तो अक्सर आप लाइम लाइट में आते हो तो वो भी आपका अच्छा कर सकता है। सो यू मस्ट शो करेज एंड फाइट अगेंस्ट दिस मीनस। तो ये आपको करना है एंड इंश्योर जस्टिस फॉर एन ऑनेस्ट ऑफिशियल विच हैज लेड हिज लाइफ ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो क्रिटिकली इवेल्युएट मेरिट डिमेरिट। ऑप्शन 1 है आपका। अच्छा, इससे पहले केस 2 का भाई भी तो पढ़ना है। इन्होंने क्या लिखा है? द केस स्टडी हाईलाइट नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, स्टोन माफिया, करप्ट पुलिस एंड सिविल ऑफिशियल। ओके, this also forms the case of collusive corruption where all। इसका मतलब समझते हैं आप collusive corruption का क्या मतलब है? ठीक है, ये बन रहा है केस कि हाँ, एक ऑफर कर रहा है घूस और दूसरा ले रहा है, दैट्स कोल्यूसिव करप्शन। दूसरा होता है कोर्सिव करप्शन की यू आर फोर्सिंग दैट पर्सन टू गिव, अदरवाइज काम नहीं करोगे। वेयर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व हेल्पिंग ईच अदर टू कैरी आउट इलीगल स्टोन माइनिंग। देन आपका पहली लाइन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा है ना, बैन करने के बावजूद दे आर वायलेटिंग द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसको शॉर्ट में ये कर सकते हो कि देयर हैज बीन एन एक्सेस ऑफ दिस पीपल which are benefiting or which are acting together in a nexus for stone mining against the order of honorable supreme court, harming as well as harming the environment। तो हमारी दो चीज़ें हैं कि इनका नेक्सस है, दे आर कैरिंग आउट दिस इलीगल थिंग, देन इसका दो चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना हो रही है और दूसरा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, देन एक और बात आप यहाँ पे कहोगे फर्दर, लाइक सीरियसनेस पे आप बात करोगे, लाइक देयर इज अ एक्सटेंट क्या दिखाया है, हाई सेंसिटिविटी। द केस ऑल्सो इन्वॉल्व हाई सेंसिटिव एंड थ्रेट इन टर्म्स ऑफ किलिंग ऑफ पुलिस ऑफिशियल, हायर सुपीरियर या एसपी जो है ना, एसपी, तो हाई पुलिस ऑफिशियल की डेथ का भी है, तो इट्स अ मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, तो इसका भी केस इन्वॉल्व करना है, तो उनके लिए जस्टिस इंश्योर करने की बात है। तो दो चीजें इसीलिए कि आपको बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तभी आप दोनों बातें कर पाओगे। स्टेक होल्डर भी आपने सही पकड़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिशियन, टीवी चैनल, पब्लिक एट लार्ज, इन्वायरमेंट रह गया। तो इसमें स्टेक होल्डर बहुत से लोग हैं, तो आप इनको ऐसे डाल सकते हो, करप्ट ऑफिशियल पॉलिटिशियंस, ठीक है, एंड माफिया, वन साइड निगेटिव क्लब करना पड़ता है, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। देन स्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, एक साथ ऐसे कर दो, योर सेल्फ, अशोक एंड हिज फैमिली। आपने क्या ऑप्शन लिखे हैं? ऑप्शन 1, ही कैन नॉट मेक स्टोरी पब्लिक एज पर एडवाइसर। ओके, नॉट, डोंट पब्लिश द स्टोरी, ठीक है, ऑन एडवाइस, सिंपल लिखो। सेकेंड है कैन मेक इट पब्लिक इन रेडी टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, कैन सीक सपोर्ट ऑफ एसपी एंड पब्लिश इट ऑन सोशल मीडिया एनोनिमसली। अब यहाँ पे ये तो अच्छा ऑप्शन है, बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर इन्होंने नहीं किया है, ठीक है ना, और वो ये चीज़ है कि एस्केप, ही ट्राई टू स्टॉप। अब ये जो बात कही ना कि ऑफिसर, ये एसपी मरा है या फिर कोई और, पढ़ने से तो एसपी ही लग रहा है, दैट्स अ प्रिटेंडेंट सीम्स टू बी द ऑफिसर, है ना। ही ट्राइड, यहाँ पे जो बात हुई ना, ही फाउंडेड, तो इसका कनेक्शन ये दिखा रहा है ये, ओके, कि एसपी हैज बीन किल्ड। इसमें आप डाउट मत रखिए, तो आप एसपी सर को कैसे रीच करोगे, ठीक है। सो रीड दीज थिंग्स, आपको लिंकेज मिल जाता है। तो दिस इज आई थिंक अ मिस रीड। हाँ, नए एसपी हो सकते हैं, बट इट डजंट सीम लाइक आपका पुलिस ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई, एक जनरल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेक कर पा रहा है, तो इट शो समथिंग इज अ मिस, राइट। सो देयर इज अ थ्रेट फॉर हिज लाइफ एज वेल, तो आपको उस चीज़ के लिए
माइंडफुल रहना होगा। तो हाँ, ये एनोनिमस आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमेशा लाइक ऐसे कोई भी प्रेशर वाली सिचुएशन है, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू नॉक द डोर ऑफ ऑनेस्ट एंड हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन पैरेलली, है ना। आपके पास कई सारे इंस्टीट्यूशन, एक नहीं कोई ना कोई तो सुनेगा ना। सो दिस इज अ सेफ स्ट्रैटेजी। सीबीसी सीबीआई को भेज दो, प्रेसिडेंट को भेज दो, सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दो। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं देन अगर कोई और रेप्यूटेटेड जर्नलिस्ट है, कोई चैनल है, वहां पे भी अप्रोच करो, ट्रस्टेड मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है। सो यू शुड टेक मल्टी प्रोन्ड अप्रोच। यहाँ पे आप एक जगह पे सिंगल प्लेस पे अपना ट्रस्ट ऐसी चीज रख के खतरा उठाओगे। सो यू शुड मेक इट, अगर एनोनिमस जहाँ कहीं जाना है वहाँ एनोनिमस जाओ, बट रीच आउट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटेग्रिटी, ठीक है, हाई इंटेग्रिटी। एंड लाइक अगर अच्छी बात अगर आप जानते हो तो ऐसे में अगर कोई ऑफिशियल अगर होता है, लाइक इट्स अगेन बियॉन्ड द रीजन, बट इसको यहाँ पे लिख नहीं सकते हो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट ऐसे में जनरली आपके बैचमेट अगर एसपी का अगर कहीं आपको मिल जाए तो उनको आप अप्रोच कर सकते हो। जनरली होता है कि दे शेयर बॉन्ड, तो उनके दोस्त हैं तो दे विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन अगर आप वीक पोजीशन पे हो तो। बट दैट्स मोर प्रैक्टिकल, बट यहाँ पे हमें लिखने के लिए उतनी जरूरत नहीं है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन 1, ही कैन अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द टीवी एंड सिक्योर हिज प्रमोशन। ओनर से ज़्यादा भैया माफिया एंड पूरा जो नेक्सस है, करप्ट ग्रुप जो है, उसको आप एक साथ क्लब करके उसका बोल सकते हो कि दिस करप्ट जो नेक्सस है ना, माफिया नेक्सस, वो तो ये अवॉइड करके अपना एक सिक्योर चीज़ें पा सकते हैं। डीमेरिट सकम्बिंग टू एक्सट्रेनियस प्रेशर, नॉट डूइंग हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, सेटिंग रॉन्ग प्रेसिडेंस फॉर फ्यूचर, स्टोन माइनिंग इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। सो हाँ, दिस मेनेस विल कंटिन्यू, ठीक है। तो आप इस सिंपल है कि स्टोन माइनिंग, इलीगल माइनिंग एंड मेनेस विल कंटिन्यू, ठीक है। सो पुटिंग एनवायरनमेंट एट रिस्क, बिल्कुल बहुत अच्छे पॉइंट ये लिखे हैं। सेकंड के आपने क्या बात किया था कि हम कर देंगे, तो इट रिजल्ट आपका सेकंड पॉइंट था, कैन मेक इट पब्लिक, एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस। सो बिलीफ इन अ रूल ऑफ लॉ एंड डिजायर टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, बहुत बढ़िया आपने, अब ये इसी को बोलते हैं, आप फायदा उठा रहे हो पीडीएफ का कि हाँ दीज आर द लैंग्वेज यू शुड यूज। वैल्यूइंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, बेनिफिशियल फॉर इन्वायरमेंट। सो रादर देन, एक और चीज है, देखो एक चीज हो गया कि अगेंस्ट इनजस्टिस अलग चीज है, फाइटिंग फॉर जस्टिस इज लाइक साउंड्स गुड, इट गिव्स अ गुड वाइब। तो पॉजिटिव वाला अप्रोच करो, इनजस्टिस से लड़ाई करने से अच्छा है जस्टिस के लिए लड़ाई करें, इट साउंड्स बेटर, जस्ट अ सिंपल एंड मेक इट लाइक इस चीज को हाईलाइट करें, है ना। इट शोज faith and belief in and willingness to fight for justice for the right cause. Then आपके demerit क्या है, may not be facious option as it may cost a stroke. हाँ, there is a grave threat, है ना, threat for job, for life, can endanger his life also as they are killed the police official. Okay, next option है conviction to uphold। वैसे एक और चीज है यहाँ पे कि हमने 21 में क्वेश्चन किया था माइनिंग पे, याद है, सेम चीज थी वहां पे, स्टोन माइनिंग की जगह पे एक और था, उसमें भी ऑफिशियल वाज समवॉट किल्ड प्रीवियसली एंड देन यू वर काइंड दैट एसपी। तो सेम चीज को इन्होंने उठा के दूसरे एंगल से पूछा है। तो इसीलिए केस स्टडीज को सॉल्व करना, उनका प्रैक्टिकल एक माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है कि क्या ग्राउंड पे है, और ये ऐसा केस फिर से आ सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। थर्ड ऑप्शन है कि आप एनोनिमसली जो है प्रूडेंटली एंड सतर्कता से आप काम करो, ऐसी बात कहो कुछ, है ना, कि मल्टी फेसिटेड सतर्कता के साथ, एनोनिमिटी के साथ और चालाकी के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या है, कन्विक्शन टू अपहोल्ड रूल, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, तो बेसिकली जो पॉइंट 2 थे उसके आपके मेरिट सारे वही रहेंगे, दिस ऑप्शन कैन फर्दर। तो एक क्या कि आपके पॉइंट 2 के ऑप्शन सीधे आप कह सकते हो कि ये हैं, एडिशनल ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, तो इंश्योर हाई रेट ऑफ सक्सेस, है ना, प्रूडेंस दिखाता है आपका, अप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाता है, सेंसिटिविटी टुवर्ड सिचुएशन दिखाता है, सिचुएशनल अवेयरनेस दिखाता है, ठीक है ना। ये जब आप इस चीज को लेके आते हो, देन आपके ये तो सारे इन्वायरमेंट वही रहा है, सारी चीजें वही रही, ठीक है ना। तो ये आपका एडिशनल इसमें मेरिट है, इस पॉइंट में कि आप जो है सतर्कता से काम करें, सेंसिटिव होकर काम करें,
है ना। डिमेरिट क्या है? डिमेरिट इसमें यही होगा कि यू मे बी फाइंड आउट, क्योंकि आप सीएमडी जो है आपके बारे में जान चुका है, तो अगर ये रिपोर्ट आपकी है, इसके पास है, so you may be found out in threat may still exist despite the caution, the threat may still exist। ठीक है, इतना ही है इसका डिमेरिट। और अगर कुछ दिखे आपको तो आप बता सकते हो। चलो इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा था। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन था इनका पब्लिश करना है, ऑप्शन 2 था ड्रॉप करना है, ऑप्शन 3 है सबमिट इन्वेस्टिगेशन टू पुलिस, जो कि नाइव है। Option 1, there is a will to fight against corruption, shows dedication and a will to fight for justice। ऐसी चीज़ है थोड़ा। It shows duty of an journalist, integrity and role of electronic media towards public interest। यहाँ कुछ ये अच्छी बातें आई हैं इंटेग्रिटी के अलावा, ये कि आप एज अ जर्नलिस्ट आपका पब्लिक की तरफ जो सेंस ऑफ ड्यूटी को वो दिखाता है। पर्सनल लाइफ में बी इन ट्रबल बिकॉज, इतना नहीं हो, ये तुम्हारा कि आप सीधे एक ही चीज़ है कि अलाइज ड्यू टू फाइनेंशियल थ्रेट, है ना, ये चीज़ें एक साथ। न्यूज़ चैनल विल बी इन प्रॉब्लम ड्यू टू पॉलिसीज हु इज पॉलिटिशियंस, हु इज नहीं, हु आर शेयर होल्डर। ठीक है, या हु इज शेयर पॉलिटिशियन, हु आर आप करोगे ना, तो सिंपल इसी पे कर सकते हो। न्यूज़ चैनल में गेट इन ट्रबल, तो और भी चीज़ें हैं बट ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका ड्रॉप द आइडिया, ड्रॉप करोगे तो क्या चांस ऑफ प्रमोशन, इंश्योर बेनिफिट फॉर सेल्फ, सीधे सीधे उसमें प्रमोशन, सैलरी या लोन जितनी चीज़ें दे रखी हैं बस इतना एक साथ ब्रैकेट में कर दो। सेव न्यूज चैनल फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रबल, ठीक है। देन आपने इस साइड पे क्या किया, डिमेरिट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इंटीग्रिटी, लैकिंग फाइट करप्शन। देखो सबसे पहले क्या दिखाते हैं ना, लाइक इंटीग्रिटी से भी लाइक पहले इट शोज एस्केपिस्ट अप्रोच। अगर आप छोड़ के आते हो ना ये चीज़, इट शोज लैक ऑफ करेज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखता है, इट इज लाइक जिल्डिंग अंडर प्रेशर एंड नॉट डूइंग द राइट थिंग। आप राइट थिंग नहीं कर रहे, यू आर नॉट विलिंग टू और गो टू एक्स्ट्रा माइल फॉर डूइंग द राइट थिंग। तो ये चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा इस तरीके से भी बातें लिख सकते हो, सिंपल सिंपल, है ना। इतना बड़ा बड़ा जो लिख रहा है इसके लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या दिखा रहा है। सिंपल सिंपल 4-5 चीज़ें आप लिख दोगे तो ग्रास्पिंग है, आप कई सारे डायमेंशन कवर करते हो। अब देखो अपनी कितनी बातें, कॉम्प्रोमाइजिंग विद इंटीग्रिटी, लैकिंग विद द विल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इसको कौन सा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना था, ये तो जर्नलिस्ट है भाई। गोज अगेंस्ट पब्लिक एंड इन्वायरमेंट इंटरेस्ट। तो इसमें ना यही चीज़ है कि आप ये चीज़ें दिखाओ है, क्योंकि इट इज़ अ पर्सनल लेवल पे एक है ना, एक जर्नलिस्ट के बारे में तो एक तो ड्यूटी वाला है कि हाँ जर्नलिस्ट की भी एक ड्यूटी बनती है टू इन्फॉर्म मीडिया लाइक पीपल, और ऐसे चीज़ों को सामने लाना उनकी एक ड्यूटी बनती है, तो आप उसकी डेफिनेटली बात करोगे। एंड बाकी जो यहाँ पे लैक ऑफ करेज, नॉट डूइंग द राइट थिंग, इस तरह की बातें करोगे, है ना। ऑप्शन 3 आपने कहा था कि सबमिट इन्वेस्ट पुलिस को आप कर दोगे। यहाँ पे आपने क्या मेरिट डिमेरिट लिखे हैं, देयर इज अ विल टू अपहोल्ड ड्यू। तो देखो जनरली जब आपके पास ऐसा केस दिया हो, नहीं दिया हो कि ऐसा कुछ पुलिस का नेक्सस है या ऐसा, तो अब बिल्कुल पुलिस के पास जाना सही था। दैट वुड बी द लाइक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यही चीज डाला। बट हियर इट हैज बीन क्लियरली मेंशन दैट पुलिस इज कॉम्प्रोमाइज्ड एट लोकल लेवल। तो आपने जो बात कही ना, तो वो चीज यहाँ पे इसलिए गड़बड़ हो जा रही है। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। Process justice and public interest comprehension, ये demerit will threat to life of Ashok Sev, example was killed as blower। ठीक है। ethical dilemmas यहाँ पे लिख लिया करो भैया अशोक, ताकि आपकी क्लैरिटी रहे। स्टार्टिंग में बताया था ना करते हो कि क्वेश्चन को देखते हो ध्यान में रखो। डिमेरिट आपने आपने कम लिखे हैं ना दोनों साइड पे, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो दोनों लोग भूल गए भाई, तो ये सब चीज़ें मत भूलिए। ये भी एक साफ साफ क्वेश्चन में पहली लाइन ही दे रहा है ना। तो इट इज़ अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन, इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, खासतौर पर अगर केस में दिया है तो क्यों नहीं।
एथिकल डिलेमा फॉर अस क्या थे? पर्सनल गेन वर्सेस इंटीग्रिटी एंड ड्यूटी, बिल्कुल। करप्शन वर्सेस लॉ, टू अपहोल्ड लॉ वर्सेस यील्डिंग टू प्रेशर, ये है ना आप, ये बात हो गई। पर्सनल गेन वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक तो गेन भी है और सेफ्टी भी वाला चीज़ है, हमेशा गेन भी नहीं होता है। आप एक और चीज़ इसकी जगह पे, दोनों जगह पे एक ही है, तो सेफ्टी वाला एलिमेंट भी आप बात कर सकते हो कि पर्सनल सेफ्टी जो है आप सीख कर रहे हो एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल। तो ये कई बार जैसे आपके पास इस तरह से आता है, तो हाउ यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड, काइंड दोनों चीजें सेम ही दिखा रही है, बट यू कैन यूज दिस वे, ठीक है। इन्होंने क्या लिखे हैं? पब्लिक सर्विस वर्सेस पर्सनल गेन, जस्टिस वर्सेस, अब यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स भी तो है ना। आप प्रोफेशनल भी तो, जर्नलिस्ट का प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहता है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये भी एक डिलेमा है, टू कॉम्प्रोमाइज विथ योर प्रोफेशनल एथिक्स फॉर पर्सनल सेफ्टी या पर्सनल गेन, जो भी आप लिख रहे हो, है ना। पब्लिक सर्विस से तो कर ही रहे हो। जस्टिस वर्सेस प्रोफेशनल सिक्योरिटी, अब ये कैसे हो गया भाई? जस्टिस, इनजस्टिस आप कहते तो समझ में आता है, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हो। एक तरफ इसको जस्टिस इंश्योर करना है, ठीक है, दूसरी तरफ पर्सनल सेफ सिक्योरिटी मिल रही है। जस्टिस ले या पर्सनल सिक्योरिटी, ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड। जस्टिस, इंटीग्रिटी वर्सेस प्रेशर, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि मोरालिटी है ना, आपका पर्सनल मोरालिटी अगर अलाउ कर रहा है, तो वर्सेस क्या है? सेफ्टी। ये भी एक डिलेमा है कि आप अपना घर परिवार की सेफ्टी ऑफ द फैमिली और सेल्फ वर्सेस मोरालिटी। आपकी मोरालिटी क्या कहेगी कि पब्लिश करो, डू फाइट फॉर द राइट थिंग, वर्सेस आपका यहाँ पे क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर फैमिली, योर सेल्फ एंड योर फैमिली। इनफैक्ट आपका टीवी चैनल का भी जो कह रहे थे वो भी, दैट टू कैन कम अंडर थ्रेट, हुआ है, टीवी चैनलों का लोगों ने घेराव करके तोड़फोड़ किया है। सो दैट टू, सो बोला था 4 से 5 आपका बन जाएगा, तो इनमें से आप, ये छूट गया है, अगर इनमें से कोई आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल, अदरवाइज यहाँ पे केस पड़ा था, इसलिए 4-5 चीजें थी सुनील के सामने। नेक्स्ट आपका था मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन शुड चूज, ऑप्शन 3, दिस शोज एबिलिटी टू स्टैंड अप फॉर व्हाट ही परसीव टू बी राइट। ही क्या, व्हाट इज राइट, सिंपल लिखो, है ना। ड्यूटी ऑफ जर्नलिस्ट, व्हाट इज राइट एज वेल एज ड्यूटी ऑफ अ जर्नलिस्ट, दोनों ही चीजें आपका यहाँ पे देखो। एक चीज मैं बताता हूँ, जो ये सेंटेंस है ना, आप एक तो उसकी तरफ से सॉल्व कर रहे हो, बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर मोरालिटी, एवरीथिंग यू आर राइटिंग इज समवॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर knowledge, your sincerity, your morality, your ethics, right? That's why these questions are like asked this way. So when things are very very apparent, जैसे ये केस है, तो यहाँ पे चीज आप एजर्ट कर सकते हो कि राइट है ना, यहाँ पर परसेप्शन की बात नहीं है, स्टैंडिंग अप इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे आप एजर्शन दे सकते हो। कहीं कहीं पे नहीं होता इतना एपरेंट, तो जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे एपरेंट है, सो मेक श्योर कि यू यूटिलाइज दैट, ठीक है। दे सर्व जस्टिस टू द मार्टियर ऑफिसर एंड हिज फैमिली, ओके, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ऑनरिंग। अब अगेन आप पूरा केस में सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हो, है ना। तो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो बात कही थी कि आप बात करोगे कि क्यों, पूछा है ना कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, विच ऑप्शन डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एंड वाई। तो पहले आपको ये बताना है कि ये, एंड देन वाई वाला आंसर। तो ऑप्शन 3 विच इंश्योर्स, आपको ये थोड़ा सा बताना होता है ना कि क्या ये है ऑप्शन, ऑप्शन का फॉलो अप थोड़ा सा देना है कि क्या क्या काम कर रहा है वाई वाला, फिर आप ये बात कर रहे हो कि इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ, लाइक प्रॉस सबसे ज़्यादा है, डीमेरिट सबसे कम है, और डीमेरिट कैन बी लाइक समवॉट कर्टेल्ड और मिनिमाइज। तो ये आपका लाइक स्टैंडर्ड आंसर होता है, क्योंकि आप तो खुद ही जब इवेल्युएट करो तो सारी बातें कह चुके हो, है ना। तो ये आपको शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में और क्लब करके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आपको इसको एड्रेस करना है कि लॉ ऑफ द लैंड, जस्टिस इंश्योर करेगा, है ना, ड्यूटी को, आपकी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है, तो ये सारे प्रॉस जो है एक साथ अलग अलग
हेडिंग्स में अलग अलग डायमेंशन पे बात करना है। ये लीगल डायमेंशन बात कर रहा है, ये जस्टिस बात कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट पे आप बात कर रहे हो। देन आप लास्टली एक और बात करोगे डिमेरिट्स में, ये सबसे कम डिमेरिट इसी पे है, क्योंकि आप दोनों ने ही वो चीज़ नहीं लिखी है, लाइक मल्टी फेसिटेड और मल्टी प्रोन्ड अप्रोच लेते हुए विद कॉशन एंड सिचुएशनल अवेयरनेस। तो आप इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा दिखा सकते हो इसमें। आप जो अगर आपके पास और भी ऑप्शन एक और लिख सकते हैं, जनरली लिखते हैं कि आपका अगर कोई ट्रस्टेड सीनियर कोई है जो आप जानते हो तो उसकी भी हेल्प ले सकते हो ऐसी चीज़ों में। यू फाइंड दिस जर्नलिस्ट टेक हेल्प। आप बड़े बड़े जितने भी केस देखोगे ना जहाँ पे चीज़ें इस तरह की बड़ी बड़ी रिपोर्ट आई हैं, तो दिस इज व्हाट हैपन कि जर्नलिस्ट पहले लोकल छोटे जर्नलिस्ट होते हैं, दे गो टू बिगर जर्नलिस्ट विथ क्रेडिबिलिटी एंड वाइडर पब्लिक आउटरीच। ये आपका ईरान वाले केस में, यूएस के केस में हुआ है कई जगह पे, जो बड़ी बड़ी वाटर गेट था उसके केस में भी ऐसे चीज़ें थी। तो जनरली ऐसी चीज़ें होती हैं कि यू एज ए स्मॉल जर्नलिस्ट के पास ना तो इतना पावर है, ना तो क्रेडिबिलिटी है, ना तो पब्लिक है कि इस पे तुरंत एक्शन हो जाए। तो जनरली दिस इज द लाइक एक्शन या राउट विच इन जर्नलिज्म इज टेकन कि यू आर सिंपल स्मॉल जर्नलिस्ट, आप जाते हो बड़े एंड ट्रस्टेबल जर्नलिस्ट के पास, एंड यू डू प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान। कभी भी खाली हाथ ऐसे नहीं जाना होता है, ठीक है। तो आप एक कंटिजेंसी प्लान के साथ जितने भी ट्रस्टेड लोग हैं आप अप्रोच करोगे। ट्रेनिंग फॉर पुलिस ऑफिसर्स, तो इसमें सीधी सी चीज़ क्या है, उनको सिचुएशनल अवेयरनेस आपको देनी पड़ेगी, इनको कम्युनिकेशन स्किल देनी पड़ेगी, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ये लोकल्स के साथ मिलकर काम करें, है ना। देन आपको एक और ट्रेनिंग दे सकते हो अगर ज़रूरत है ऐसी चीज़ों में, तो स्पेशलाइज्ड टैक्टिकल ट्रेनिंग आप दे सकते हो। वाई टू बिल्ड मेंटल रेजिलियंस, ऐसी चीज़ों में अगर डेथ थ्रेट होता है तो पुलिस वाले भी इंसान है, दे कैन सकम अंडर प्रेशर, ठीक है। देन आप इसीलिए टैक्टिकल ट्रेनिंग देते हो कि मेंटल रेजिलियंस और छोटी मोटी के जो आपका जो नया, अगेन पढ़ो इस चीज़ को, जो इस पे एक रूल आया है ना, माइनर मिनरल रिपोर्टिंग रूल, तो उसमें बात किया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाने का। वाई? बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ माफियाज हु गो टू लेंथ एंड ब्रेथ टू, लाइक सीधे सीधे उनका इंटरेस्ट है, तो दे आर रिजॉर्टिंग टू दिस काइंड कि बड़े बड़े ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं। तो दिस इज वाई डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बना है इसके अंदर, तो आप उसी चीज़ को यूटिलाइज करोगे, है ना। तो आपका मेंटल एंड पीयर सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे कि आपके ऑफिसर्स पे आपको ट्रस्ट हो, आपके जो टीम मेट्स हैं वो दे शुड बी डेडिकेटेड टू हैंडल सच सिचुएशंस। so this is the kind of training you would put them through, okay। एंड ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, यू हैव टू बी अवेयर। इसमें अलग अलग लोग लिख लेंगे, बट यू वेयर डू यू डिराइव दिस थिंग, अगेन जो आपका ये रूल आया है इसमें जो बातें कही हैं उसको कैसे एक्वायर करोगे, यू जस्ट हैव टू थिंक बैक एंड यू विल फाइंड दिस थिंग्स, ओके। चलो इनका भी लास्ट में पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या बातें कही हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, one because shows willingness to uphold due process of law like Mine and Mineral Development Regulation Act कंपैरिजन। ये 2020 का फिर एक बार जो रूल आया है ना, इसको एक बार देख लो भाई, इसमें सारी बातें मिल जाएंगी आपको। इट शोज कंपैशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड, अब ये आप कैसी देखो, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो कि ये चीज़ें ये दिखा रहा है ये दिखा रहा है, बट प्रैक्टिकलिटी मिसिंग है इसमें। पूछा ये नहीं है कि इसमें कितने फायदे हैं, आप यही तो चीज़ गिना रहे हो कि ये इससे ये होगा, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच की ये हमारा क्यों बेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन है भैया, क्यों ऑप्शन है हमारा, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम नुकसान है, सबसे ज़्यादा फायदे हैं, नुकसान को हम काउंटर कर सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच। और जो आपने लिखा है ऊपर मेरिट एंड डीमेरिट, उसके रिस्पेक्ट में आपको बातें कहनी है, ऊपर आप जो बात कहते तो आ जाएगा, या कंक्लूजन में आप ला सकते हो। तो मेक श्योर कि यू फॉलो दैट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। कभी भी ये आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट का, तो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉस एंड मिनिमाइज योर कॉन्स, और जो भी ऑप्शन ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा होगा दैट्स योर लाइक सिंपल, ये रूल ऑफ थंब है, इसमें एक बट वाला कोई सिचुएशन ही नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। फिर आपने बात किया है कंपैशन की, रियल ड्यूटी इन गवर्नमेंट। ये देखो ये सब सेंटिमेंट है और कुछ नहीं है। दिस विल नॉट फेच यू मार्क्स। सोज डेडिकेशन करेज, भैया सो कहाँ कर रहा है, करने की बात आएगी ना तो लोग भाग जाते हैं। यू नो योर सेल्फ, कितने लोग दोस्तों के लिए तो फाइट करते नहीं है, इसके लिए जान जोखिम में डालेंगे। सो बी प्रैक्टिकल
एंड जुडिशियस इन योर आंसर्स। हवा में लाइक ये देख के आई कैन टेल कि आप हवा में बातें कर रहे हो। ये आप लास्ट में एक अच्छी बात आपने किया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ये ऑलरेडी बात कर चुके हो मोस्टली। सेकेंड आर्क रिकमेंडेशन ऑफ टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग होता है, कमिटी रिकमेंडेशन यूज ICT फास्टर एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अगेन आप पॉइंट मिस कर देते हो, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा है अबव सिनारियो। क्या है हमारा अबव सिनारियो कि देयर इज अ ग्रेव थ्रेट, है ना। तब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए, जहाँ आपका SP मारा जा रहा है वहां पे आप हवलदार को कैसे ट्रेन करोगे सर एंड मैम, ये है सवाल ऐसे एरियाज में। तो आपको क्या चाहिए, लोकल लोग चाहिए, पुलिस वॉलेंटियर चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट मजबूत पुलिस वाले चाहिए टू डील विद दिस थिंग, है ना। और ऐसा आपको डेडिकेटेड स्टाफ है, जो भी टीम चाहिए जो एक दूसरे पे भरोसा करता हो। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं देन यू कैन डील विद दिस मेनेस, ठीक है। तो एसेंशियल कंपोनेंट आप फाइंड आउट करो एंड उसको आप बिल्कुल अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करो। सो दिस इज केस स्टडी 2 एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, पूछिए एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।